students, class 3 EVS chapter 1 knowing my body. Choose the correct option to complete each sentence. A number question है, there are 206, there are dash bones in our body. 206 or 306. 206 bones are covered by dash skin or muscles. Bones give dash and support to our body, size our shape. Bones give shape and support to our body. Second question है, write a short note on a good posture. Good posture पे एक short notes लिखना है. Good posture is very important to maintain a healthy mind and body. Good posture हमारे शरीर और दिमाग को मजबूत बनाता है. When we maintain the correct posture, our body is alignment with itself. This boosts our self confidence. यह self confidence को बढ़ाता है. Word meaning: cell means कोशिका. TISSUE tissue means ऊतक. ORGAN organ means अंग. ORGAN organ. SYSTEM organ system means अंग प्रणाली. INTERNAL internal means आंतरिक. EXTERNAL external means बाहरी. ACNACORGAN sense organ means ज्ञान इंद्रिया. LUNGS lungs means फेफड़ा. KIDNEYS kidneys means गुर्दा. VOLUNTARY voluntary means स्वैच्छिक. INVOLUNTARY involuntary means अनैच्छिक. FOODPIPE food pipe means भोजन की नली. CHURNS चूर्स means मंथन या टुकड़ा करना. SMALL small INTESTINE small intestine means छोटी आंत. DASIC basic means आधारभूत. Reproduce 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 means प्रजनन करना. INDEPENDENTLY independently means स्वतंत्र रूप से. WONDER wonder means आश्चर्य. BLINKING blinking means पलक झपकाना. Our body is made up of cells. हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है. Cell is a basic and the smallest unit of life. कोशिका हमारे जीवन का सबसे छोटा एवं आधारभूत इकाई है. सबसे छोटी एवं आधारभूत इकाई है. That can reproduce independently. यह स्वतंत्र रूप से प्रजनन करता है. There are different kinds of cell in our body. हमारे शरीर में अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं. The same kind of cells join together to form a tissue. एक ही तरह के कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करते हैं. Similarly, a group of different tissues form an organ that perform a particular function. इसी प्रकार अनेक ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं जो हमारे शरीर के खास कार्यकलाप को करते हैं. Many organs work together to form an organ system. अनेक अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं. Our body has external and internal organs. हमारे शरीर में बाहरी एवं आंतरिक अंग पाए जाते हैं. External organs are present on the surface of the body. बाह्य अंग हमारे शरीर के बाहरी भाग में पाए जाते हैं. And internal organs are present inside the body. और आंतरिक अंग शरीर के अंदर पाए जाते हैं. External organs. The organs that are visible to us are called external organs. वैसे अंग
जो हमारे शरीर के बाहर पाए जाते हैं, जिसे हम लोग देख सकते हैं, उसको एक्सटर्नल ऑर्गन बोलते हैं। शोल्डर्स, हेड, आर्म्स एंड फीट आर सम ऑफ द एक्सटर्नल ऑर्गन्स। कंधे, मस्तिष्क, हाथ और पैर कुछ बाहरी अंग हैं। द एक्सटर्नल ऑर्गन्स लाइक आईज, nose, ears, tongue and skin are together known as sense organs. बाहरी अंग जैसे आंखें, नाक, कान, जीभ और चमड़ा को एक साथ हम लोग ज्ञान इंद्रियां कहते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, आंतरिक अंग। Organs that are inside the body and cannot be seen directly are called internal organs. वैसे अंग जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं और जिन्हें डायरेक्टली हम लोग नहीं देख सकते, उसे आंतरिक अंग कहते हैं। Lungs, kidney, brain, stomach and heart are some of the internal organs. फेफड़े, गुर्दा, मस्तिष्क, पेट और हृदय कुछ आंतरिक अंगों के उदाहरण हैं। Let us now learn in detail about some of the important internal organs. आगे हम लोग डिटेल में कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण आंतरिक अंगों के बारे में पढ़ेंगे। Have you ever wondered how we solve a mathematical problem? क्या आप लोगों को कभी आश्चर्य हुआ है कि हम लोग गणित के समस्याओं को कैसे हल करते हैं? ब्रेन, मस्तिष्क है, it is one of the several activities that our brain help us perform. मस्तिष्क हम लोगों के बहुत सारे गतिविधियों को करने में सहायता प्रदान करता है। The brain helps us think and remember events, solve problems, make decisions and communicate our feelings and thoughts. मस्तिष्क हम लोगों को घटनाओं को याद रखने, समस्याओं को हल करने, डिसीजन लेने, निर्णय लेने, अपने फीलिंग्स और विचारों को दूसरे व्यक्ति के सामने रखने में सहायता प्रदान करता है। इट कंट्रोल्स मसल मूवमेंट, यह मांसपेशियों के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। द ब्रेन कंट्रोल्स वॉलंटरी एक्शन लाइक क्लैपिंग, रीडिंग एंड ईटिंग। मस्तिष्क स्वैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे ताली बजाना, पढ़ना और खाना। इट कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शन लाइक ब्रीथिंग एंड ब्लिंकिंग। यह अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे सांस लेना और पलक झपकाना। द ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। मस्तिष्क में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सेरिब्रम, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। इट एनेबल्स अस टू थिंक, इमेजिन, रिएक्ट टू मैसेज फ्रॉम आवर सेंस ऑर्गन्स एंड रिमेंबर इंफॉर्मेशन। यह हम लोगों को सोचने, इमेजिन करने, अपने सेंस ऑर्गन द्वारा किसी मैसेज का जवाब देने और सूचनाओं को याद करने की शक्ति प्रदान करता है। सेरिबेलम, इट इज लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम। यह सेरिब्रम के नीचे पाया जाता है। इट कंट्रोल्स आवर मसल मूवमेंट्स एंड हेल्प्स मेंटेन फिजिकल बैलेंस। यह मांसपेशियों के मूवमेंट और
शारीरिक संतुलन को बैलेंस करता है। मेडुला ओब्लांगा तीसरा पार्ट है। इट इज लोकेटेड एबव द नेक, यह गर्दन के ऊपर पाया जाता है। एंड कनेक्ट्स द ब्रेन, विद द स्पाइनल कोड, यह गर्दन के ऊपर पाया जाता है। यह मस्तिष्क को मेरुदंड के साथ जोड़ता है। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, हार्ट फंक्शन, डाइजेशन, सो ऑन, यह सांस लेने, हृदय के कार्य, पाचन इत्यादि को कंट्रोल करता है। इट कीप्स आवर ब्रेन एक्टिव इवन ड्यूरिंग स्लीप, सोते समय यह हमारे मस्तिष्क को एक्टिव रखता है। हार्ट, हृदय। द हार्ट इज मस्कुलर hollow structure located in the chest slightly toward the left. हृदय हमारे शरीर का मांसल हॉलो संरचना होता है जो चेस्ट में अवस्थित रहता है, थोड़ा सा बाएं की तरफ। द हार्ट इज द साइज ऑफ योर फिस्ट, हृदय मुट्ठी के आकार का होता है। इट पंप्स ब्लड थ्रू ए सिस्टम ऑफ ब्लड वेसल, यह ब्लड को ब्लड वेसल के द्वारा ब्लड वेसल में पंप करता है। द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर नोन एज आर्टरीज। ब्लड वेसल ब्लड को शरीर के दूसरे भागों में जिसके द्वारा पहुंचाता है उसको धमनियां कहते हैं। द ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी नोन एज वेन्स। ब्लड वेसल ब्लड को पुनः शिरा के द्वारा लाता है और शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाता है। When the heart beats, it makes the sound लवडब। जब हृदय धड़कता है तो लवडब का साउंड आता है। ड्यूरिंग एक्सरसाइज, व्यायाम करने के दौरान, आवर हार्ट नेचुरली बीट्स फास्टर टू सप्लाई ब्लड। हम लोगों का हृदय प्राकृतिक रूप से धड़कता है और ब्लड का सप्लाई मांसपेशियों में होता है। द मोर इंटेंशनली वी एक्सरसाइज द फास्टर आवर हार्ट बीट। हम लोग अगर ज्यादा व्यायाम करते हैं तो हृदय ज्यादा तेजी से धड़कता है। लंग्स, फेफड़ा। लंग्स आर टू सैक्स दैट आर प्लेस्ड इनसाइड द चेस्ट कैविटी। फेफड़े में दो थैलियां होती है। फेफड़ा दो थैलियां होती हैं जो वक्षगुहा के अंदर अवस्थित रहती है। द लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग। बायां लंग दाएं लंग से थोड़ा बड़ा होता है। बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा बड़ा होता है। लंग्स हेल्प अस ब्रीथ। फेफड़े सांस लेने में हम लोगों को सहायता करते हैं। दे फिल्टर ऑक्सीजन व्हेन वी ब्रीथ इन। जब हम लोग सांस लेते हैं तो फेफड़ा ऑक्सीजन को फिल्टर करता है। एंड एक्सपेल कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन वी ब्रीथ आउट। जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है। स्टोमक, पेट। When we eat food, it passes from our mouth through a pipe-like structure called food pipe. जब हम लोग भोजन करते हैं तो यह भोजन मुंह से एक पाइप जैसे संरचना में जाता है जिसको आहार नली बोलते हैं। The food pipe empties the food into a J-shaped sac called stomach. उस भोजन फूड पाइप
फूड पाइप से एक जे आकार के थैला में जाता है जिसको स्टोमक कहते हैं। इट इज एन इलास्टिक ऑर्गन, यह एक फैलने वाला अंग होता है। लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन, जो पेट के ऊपरी भाग में पाया जाता है। इट स्टोर्स एंड चूज फूड विथ इट्स स्ट्रॉन्ग मसल, यह भोजन को स्टोर करता है और उसका मंथन करता है अपने मजबूत मांसपेशियों द्वारा। एंड ब्रेक्स देम इनटू टीनी पार्टिकल्स, और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। एंड दिस गेट मिक्स्ड विथ डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्टोमक, पेट के अंदर या छोटे टुकड़ों को पेट के अंदर पाए जाने वाले पाचन रस के साथ मिलाता है। Then the food is released into the small intestine for further digestion, आगे के पाचन के लिए यह भोजन को छोटी आंत में भेजता है। किडनीज, गुर्दा, द किडनीज आर बीन शेप्ड ऑर्गन्स, किडनी बीन के आकार का एक अंग होता है जो पेट में पाया जाता है। वी हैव टू किडनीज, हम लोगों को दो किडनियां होती हैं। वन ऑन द राइट साइड एंड द अदर ऑन द लेफ्ट, एक दाएं तरफ और एक बाईं तरफ पाया जाता है। द राइट किडनी इज स्लाइटली स्मॉलर देन द लेफ्ट वन, दाएं का किडनी बाएं के किडनी से थोड़ा छोटा होता है। किडनीज फिल्टर एंड रिमूव एक्सेस साल्ट एंड वाटर फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, गुर्दा एक्सेस साल्ट और पानी को छान करके यूरिन के रूप में बाहर करता है।